Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science, SPCGC Ajmer. This is paper 5th of MA final. Name of the paper is Political Analysis and Research Methodology, and today we will discuss about the system theory, that is one of the most important approaches of our subject. So let's start. System theory approach is one of the most important approaches of our discipline. David Easton propounded his own theory regarding the perspective of system, including environment. His theory is known as black box model. Easton has used it as conceptual framework. It includes four basic concepts: system, environment, response, and feedback. Political system. System can be tangible, intangible, ideological, etc. But according to Easton, in brief, political system is a set of structures, procedures, institutions that interacts mutually as well as includes environment. It contains values, culture, authority, rules, government, etc. Whatever is correlated to political sphere and interdisciplinary approach as well. Input and output are the two main basic concepts regarding this. Demands of the public are input that is put before the government for its decisions, and decisions taken by the government in this regard is output according to this model. Here we need the concept of environment. Political system works within the environment and it is made of many several other systems. For them, political system also works as another system. Internal and external environment internal and external environment affects the political system. Support works as a main power behind both the demands as well as decisions. Feedback regularizes the whole process of political system. Therefore, feedback plays the key role in each and every system. The responses of the subjects, that is citizens. So here comes the responses, whatever the citizens think about the policies, functions, programs of the government, etc., are called the feedback that works and makes the political system much better. Thus it can be said that political system is a modern comparative, systematic, realistic and dynamic approach in our discipline. आज हम लोग बात करेंगे एमए फाइनल के 5th पेपर के अंतर्गत व्यवस्था सिद्धांत के बारे में, जो कि हमारे अनुशासन का, हमारे सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण उपागम है। डेविड ईस्टन इस संबंध में काफ़ी विख्यात विचारक माने जाते हैं, जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का अपना उपागम दिया है, और इन्होंने इसमें अवधारणात्मक विचार बंध का उपयोग किया है, जिसके अंतर्गत व्यवस्था, पर्यावरण, रिस्पॉन्स, जनता की प्रतिक्रिया, इनपुट, आउटपुट, डिमांड्स, डिसीजंस एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सपोर्ट, समर्थन, इन सब का इन्होंने इसमें इंक्लूड इनको किया है। तो राजनीतिक व्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं तो डेविड ईस्टन का ये मानना है कि इस संबंध में हमारे पास में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, एक है इनपुट, दूसरा है आउटपुट। इनपुट जिसे कि हम लोग हिंदी में निवेश कहते हैं और आउटपुट जिसे कि हम लोग निर्गत कहते हैं। तो इनपुट के अंतर्गत यहाँ पर आ जाता है कि जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था या सरकार के सामने अपनी मांगें प्रस्तुत की जाती हैं और उन मांगों के ऊपर सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो हमारे पास में दो पक्ष आ गए हैं, एक आ गया है जनता, दूसरा आ गई है सरकार। तो जनता सरकार के सामने मांगें रखती है और सरकार उनके ऊपर निर्णय लेती है। तो जनता सरकार के सामने जो मांगे रखती है उसे कहा जाता है इनपुट या निवेश, और सरकार के द्वारा उसके ऊपर जो निर्णय लिए जाते हैं वो कहलाता है आउटपुट। सो दिस इज जस्ट ओनली अ वोकैब, हियर कम्स इनपुट एंड आउटपुट। द बेसिक मीनिंग इज इनपुट, दैट्स मीन निवेश, मतलब जनता की मांगे। आउटपुट निर्गत, मतलब सरकार के द्वारा उन मांगों पर लिया गया निर्णय। इसके अलावा हमारे पास में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाती है, दैट इज़ एनवायरनमेंट या पर्यावरण। पर्यावरण मतलब राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य जितनी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, चाहे इसमें हम लोग किसी भी व्यवस्था को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। शैक्षणिक आ जाती है, वैज्ञानिक आ जाती है, सांस्कृतिक आ जाती है। ये सभी हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए एनवायरनमेंट का काम करते हैं। तो जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है ये उससे इंटरेक्ट करती है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अन्य व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था से और राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्था से जुड़े हुए रहते हैं और ये एक दूसरे के साथ में यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं।
इसके बाद में हमारे पास में एक मेन वर्ड आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट या समर्थन। समर्थन एक महत्वपूर्ण कड़ी है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, जो दोनों ही पक्षों के लिए कार्य करता है, जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि जनता सरकार के सामने जो मांगे रखती है उसके पीछे भी समर्थन होना आवश्यक है, और सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसके पीछे भी समर्थन होना आवश्यक है। इसके बाद में आ जाता है फीडबैक या प्रतिक्रिया आ जाती है। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया का अर्थ होता है कि जनता की रखी गई मांगों पर सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, प्लस सरकार जो नीतियाँ बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, जो भी कार्य करती है, उसके ऊपर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, जनता उसके बारे में क्या सोचती है, उसके क्या रिस्पॉन्सेज हैं, वो उसे अच्छा बताती है या नहीं बताती है, या उसके बारे में उनके जो भी विचार हैं वो फीडबैक कहलाते हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डायनामिक बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है का जो दृष्टिकोण है, यह आधुनिक, तुलनात्मक, व्यवस्थित, यथार्थवादी और गतिशील अप्रोच है हमारे डिसिप्लिन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।